Hello viewer and my dear students, welcome you all in our today's live session. I am Anju from rgcsk.edu and our today's topic is RAF ruler. Before starting, those students who have not subscribed our YouTube channel, please to like, share and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. So, let's start our today's topic, that is RAF ruler. What is RAF ruler? So before starting the RAF ruler, how do your eyes work together? When an object comes very close to your eyes, it may become blurry or double. Why does this happen? Ever have you think about it? So this is because our eyes are trying to focus the near object. So this is the RAF ruler. You can see in this diagram, this is the RAF ruler, which is an instrument in which there is a rod and a target that is movable and a supporting handle that is used to rest on the nose. So the definition of RAF ruler. What is RAF ruler and why does it called RAF? That means Royal Air Force ruler. So it is an ophthalmologic or optometric instrument which is used to measure the near point of convergence and near point of accommodation. So it is an instrument which is used to measure NPC and NPA. It is help to assess the relationship between accommodation and convergence. Before starting, we should know about the convergence and the accommodation. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि RF रूलर क्या होता है, इसका हम यूज किस में करते हैं. तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर जो होता है उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि हम ये किस लिए यूज करते हैं. तो बेसिकली हमने अभी देखा कि RF रूलर हम NPC और NPA को मेजर करने के लिए करते हैं. Basically, NPC, that is near point of convergence, and NPA, that is near point of accommodation. So what is NPC? NPC is nothing but एक एबिलिटी है हमारी आई की जिससे हमारी आई क्या करती है कि जितना मैक्सिमम नियर हम टारगेट को देखकर कन्वर्ज करके उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं वो हमारा नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है. मीन्स टू से कि हमारी आई की एक एबिलिटी जो कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस करा के किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाती है उसको हम एनपीसी बोलते हैं. while NPA, what is NPA? NPA is the near point of accommodation. इसमें हमारी आई की एबिलिटी को हम देखते हैं जिसमें हमारी आई की एबिलिटी ये बोलती है कि हमारी आई कितना मैक्सिमम एकोमोडेट करके किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है. दैट इज NCA, नियर सॉरी NPA, दैट इज नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन. सो RF रूलर के ओवरव्यूज पे आते हैं. इट इज एन optometric instrument or a ophthalmologic instrument which is used in ophthalmology to estimate the near fovea and measure the accommodation and convergence relationship. Why we call it relationship? Because accommodation and convergence are equally relatable and equally important to see the near object, and it is a common tool in orthoptic examination. So basically what is orthoptic examination? Orthoptic examination is nothing but in which we use the instrument to measure, to assess, to exercise the orthoptic devices and orthoptic anomalies like near point of convergence and near point of accommodation and amplitude of accommodation. So it can also assess the near vision while recording the near point of convergence and accommodation. So what is the principle of near RAF ruler? RAF ruler, as already we know about RAF, that means Royal Air Force ruler.
because Royal Air Force ruler is designed and invented by the United Kingdom in late 1950. So it is an instrument which is primarily used by the United Kingdom to their military forces. That's why it is known as Royal Air Force ruler. So the principle of RAF ruler is to measure the near point of convergence, uses a moving target on a calibrated scale. As previously in the diagram, we have already shown the calibrated scale and a target, means to say इंस्ट्रूमेंट हम देख चुके हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है. पेशेंट रिपोर्ट्स ब्लर और डिप्लोपिया. इसमें जो पेशेंट होता है उसको ब्लर दिखता है और जो हम टारगेट दिखाते हैं पेशेंट को उसको वो डिप्लोपिया मीन्स टू से डबल विजन देखने को मिलता है. और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्सन का या फिर उस पेशेंट का नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन कैसा है और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कैसा है. सो आगे हम बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शंस की ओर. सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है क्या, कितना बड़ा होता है, क्या मेजरमेंट होते हैं उसके. तो बेसिकली आपने पिछले डायग्राम में देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रॉड होती है, या फिर हम उसको स्केल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें मार्किंग्स होती हैं. कैलिब्रेटेड रॉड होती है, स्लाइडिंग करियर होता है एंड टारगेट भी होता है उसमें. और टारगेट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. जो टारगेट्स पहला होता है वो हमारा लेटर होता है, मींस उसमें हमारे लेटर्स होते हैं जो कि हमारे रोमन टाइम्स के नंबर होते हैं, लेटर्स होते हैं. और दूसरा जो टारगेट होता है वो हमारा होता है नियर विजन चार्ट. नियर विजन चार्ट जो कि आपका N5 से लेके N12 तक की लाइंस में डेमोन्स्ट्रेटेड होता है. अगर हम बात करें वही नेक्स्ट टारगेट की, वो की जो कि होता है हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस, उसके लेटर्स प्रिंटेड होते हैं. और फोर्थ हमारा जो होता है टारगेट वो होता है आपका डॉट ऑन अ वर्टिकल लाइन. अब जो हमने अभी बात की है टारगेट्स की, बेसिकली टारगेट्स दिखते कैसे हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो टारगेट होता है वो स्लाइडिंग कर रहा होता है आपके रॉड के ऊपर. कैलिब्रेटेड रॉड है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मेजरमेंट या फिर मार्किंग्स दिखेगी. मार्किंग्स अलग अलग तरीके की होती है, हम उसको लेटर डिस्कस करेंगे. अभी हम टारगेट्स की बात करते हैं. टारगेट बेसिकली एक स्लाइडिंग ड्रम होता है जो कि क्यूबिकल होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर होता है. और ये स्लाइडिंग ड्रम ही हमें रोटेट करके ये बताता है कि हमारा नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कितना है और नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन कितना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा N5, N8, N10 एंड N12. तो बेसिकली दिस इज द नियर विजन चार्ट जो कि हमारे टारगेट होते हैं जो हम पेशेंट को फिक्स कराते हैं और उसी के बेसिस पे फिक्सेशन टारगेट मूव करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं. दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो स्नेलेंस चार्ट है. स्नेलेंस चार्ट बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस्ड साइज का है. रिड्यूस्ड साइज जो होता है उसका 17 टाइम्स रिड्यूस कर दिया जाता है जो कि नॉर्मल स्नेलन चार्ट से 17 टाइम्स छोटा होता है. ओके, आई होप यू नो एंड यू गॉट इट अबाउट द टारगेट्स ऑफ द RAF रूलर. सो इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन में हमने बात की टारगेट की, हमने बात की कैलिब्रेटेड रॉड की जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी होती है. अब 50 सेंटीमीटर ही लंबी क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल कन्वर्जेंस जो करता है बेसिकली वो 9 to 10 सेंटीमीटर में कर लेता है. बट इन प्रेस बायोपिक कंडीशन पेशेंट का जो नियर विजन होता है वो एक्सीड कर जाता है. इवन वो 25 से लेके हमारा जो नियर विजन रेंज होता है वो 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है. इसीलिए हम नॉर्मल पर्सन टू प्रेस बायोपिक पर्सन तक का जो नियर विजन है यहाँ पे हम मेजर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन NPA को हम मेजर करते हैं. स्केल मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड डायप्टर्स. अभी हमने स्केल की बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स की बात की है. टारगेट्स आपके 4 तरीके के होते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज, you can see the rod in a centimeter scale
जो रॉड होती है वो स्क्वायर शेप की होती है और 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके चारों तरफ मार्किंग्स होती है। चारों तरफ मार्किंग्स जो होती है वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है। जो पहली मार्किंग होती है वो हमारी सेंटीमीटर्स में होती है, जिससे हम क्या करते हैं, नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के सेंटीमीटर को मेजर करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे स्केल की, तो दूसरी साइड पे होता है डायप्ट्रिक मेजरमेंट। डायप्ट्रिक स्केल होती है जो कि हमारे नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन को बताती है, उसका मेजरमेंट हम फाइंड आउट वहां से कर सकते हैं। तीसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो रॉड का जो थर्ड साइड होता है वहां पे आपको एक एवरेज एज स्केल मिलती है, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक एवरेज पर्सन की पर्टिकुलर एज के लिए कितना एनपीए और एनपीसी होना चाहिए, जो कि स्केल में ही मेंशन्ड होता है। अगर आप फोर्थ साइड पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंज होता है कन्वर्जेंस का, कितना डिस्टेंस पे नॉर्मल रेंज है, कितना डिस्टेंस पे एबनॉर्मल रेंज है, वो हमें वहां पे मेंशन्ड होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं टारगेट को मूव करते हुए, जहाँ पे हम पेशेंट हमें ब्लर बताता है या क्या ब्लर बताता है या फिर डबल विजन बताता है, तो उस कंडीशन पे जो टारगेट जहाँ पे हमें पेशेंट इंडिकेट करता है उस पॉइंट को हम मेजर करते हैं और उसी के बेसिस पे हम फाइंडिंग्स निकालते हैं। रॉड रॉड विद अ सेंटीमीटर स्केल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्लाइडिंग टारगेट होता है जो कि हमारा होल्डर होता है, जिसको हम मूव करते हैं, जो कि हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव करना होता है टुवर्ड्स द पेशेंट। पेशेंट क्या करता है, टारगेट को फोकस करता है और हमारा जो टारगेट होता है वो मूविंग टारगेट होता है। डिस्टेंस चेंज होती रहती है एज द टारगेट मूव्स क्लोजर, क्योंकि जब तक वो टारगेट मूव नहीं करेगा पेशेंट उसको फिक्स नहीं करेगा और उसका हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें टारगेट को ऑन एन एवरेज उसके आई के क्लोज लेकर आना होता है। टाइप्स ऑफ टारगेट की अगर हम बात करें तो हमने अभी ऑलरेडी बताया है कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सिंगल लेटर टारगेट जो होता है एकोमोडेशन के लिए होता है, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं हमारी कन्वर्जेंस के लिए होती हैं, और जो डॉट टारगेट होता है वो फ्यूजन असेसमेंट के लिए किया जाता है। डिफरेंट साइजेस ऑफ विजुअल एक्यूटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मीन्स टू से हमारा जो स्नेलन चार्ट है उसका जो टाइम जो उसका रिड्यूसिंग अमाउंट है वो 17 टाइम्स शॉर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये टारगेट्स अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर जो हमारा होता है वो बहुत ही बेसिक प्रोसीजर होता है, लेकिन प्रोसीजर करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विसाइट्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, जो हमारे पास होने चाहिए। एक एक्यूरेट अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो उस पेशेंट के लिए आपके पास 2 एडजस्टेबल चेयर होनी चाहिए और एक इल्यूमिनेटेड रूम होना चाहिए जो कि वेल इल्यूमिनेटेड हो, ऑक्लूडर होना चाहिए, पेन एंड पेंसिल होना चाहिए रिकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए और लिखने के लिए, और उसी के साथ साथ आपके पास पेशेंट होना चाहिए। सो बेसिकली और आरएफ रूलर की हेल्प से हम ये सारी चीजें अगर हैं हमारे पास तो हम एक एक्यूरेट प्रोसीजर कर सकते हैं। सो प्रोसीजर में होता क्या है, पेशेंट को हम होल्ड कराते हैं रूल को, जो कि हमारी स्केल होती है, और उसके मिड लाइन पे मीन्स टू से नोज के नियर पे हम उसको सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ ऑब्जर्वर होता है दूसरी तरफ पेशेंट होता है। टारगेट को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की तरफ से स्लोली मूव कराते हैं, किधर, पेशेंट की आई की तरफ, ताकि हमें मैक्सिमम नियर पॉइंट मिले, और हम उससे फाइंड आउट क्या करते हैं, 2 चीजें हम मैक्सिमली फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा है एनपीए एंड एनपीसी। पेशेंट टारगेट को देखता है और टारगेट मूव होता रहता है कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट स्पीड के साथ। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे टारगेट ब्लर दिख रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको टारगेट डबल दिख रहा है। उसके बाद जो हमारी डबल और ब्लर पॉइंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हम पेशेंट को अगेन इंडिकेट करते हैं, टारगेट को मूव करते हैं बैकवर्ड की तरफ, और पेशेंट को ये बोलते हैं कि जहाँ पे उसको पेशेंट को टारगेट डबल दिखना बंद हो जाए या फिर ब्लर दिखना बंद हो जाए वो हमें इंडिकेट करता है, और उस फाइंडिंग को भी हम रिकॉर्ड करते हैं।
सो बेसिकली क्या होता है, उससे हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि पेशेंट का ब्लर पॉइंट क्या था, पेशेंट का डबल पॉइंट क्या था, मीन्स टू से ब्रेक पॉइंट क्या था। तो बेसिक प्रोसीजर होता है कुछ इस तरीके से, हम रॉयल एयरफोर्स रूलर को पेशेंट के नोज पे रेस्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रेस्ट पोजीशन है वो एक तरीके से नोज सपोर्ट है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस हो जाता है नोज पे पेशेंट की, और इसी के थ्रू जो हम पेशेंट के नोज पे रखते हैं आरएफ रूलर को, और उसी के अकॉर्डिंग हम टारगेट को मूव करते हुए पेशेंट को दिखाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, पेशेंट ने करेक्शन पहना हुआ है, मीन्स टू से हम इस प्रोसीजर को जब भी करते हैं तो हमारे आईज में फुल करेक्शन होना चाहिए। मीन्स टू से अगर किसी पर्सन ने स्पेक्टिकल लगाया हुआ है या फिर उसकी आई में पावर है तो उसका फुल करेक्शन उसके पास होना चाहिए। उसी के साथ हम क्या करते हैं, आरएफ रूलर को परफॉर्म करते हैं, मीन्स टू से इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एनपीसी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एनपीसी क्या होता है। एनपीसी इज nothing but a nearest point at which the eye can maintain binocular single vision। means to say अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बोलूं कि हमारी आई की एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम क्या करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट को भी क्लियर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो हमारा जो नियर कन्वर्जेंस का जो नॉर्मल वैल्यू होता है एक पर्सन के अंदर, वो होता है 6 to 10 सेंटीमीटर। अगर वो 6 से 10 सेंटीमीटर के अंदर क्लियर देख पा रहा है, दैट मीन्स उसका कन्वर्जेंस बेटर है, जो कि हमारी नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी आई नॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर पा रही है 6 to 10 सेंटीमीटर के अंदर, दैट मीन्स आपकी आई में क्या है, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है। कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी बेसिकली एक तरीके की एनोमली भी नहीं है, एक तरीके का डिसऑर्डर है जो कि आपकी आई में, आपकी आई के अंदर एस्थेनोपिक सिम्टम्स को कॉज करता है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स लाइक फोटोफोबिया, हेडेक, फ्रंटल हेडेक, और उसकी वजह से आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मीन्स टू से अगर आप लंबे समय तक कोई भी पास की चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रीड कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी होने की वजह से क्या होगा कि आपकी आंखों में हेडेक हो जाएगा, सॉरी आई में आई एक होगा, फ्रंटल हेडेक होगा, और उसकी वजह से आपको नियर ऑब्जेक्ट भी ब्लर दिखेगा, और ये आपका इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके एकोमोडेशन से। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इज यूज टू इवेल्युएट द कन्वर्जेंस एबिलिटी, मतलब कि हमारी आई कितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस शो कर पा रही है किसी भी नियर चीज को देखने के लिए, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि कॉमन सिम्टम्स है जिससे हम क्या करते हैं, मिस डायग्नोस कर लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारी आई में कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है, और उसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स को मिस डायग्नोस करके कुछ और इंडिकेट करते हैं। सो this is an important term to use the NPC and RF ruler procedure करके हम इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके अपने ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज से इम्प्रूव करके अपने नियर विजन को, अपने हेडेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। So working mechanism, what is the working mechanism? Measures the accommodative response, convergence response हमें इससे पता चलता है, और convergence ability पता चलती है, और इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी आई नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल है, मीन्स टू से कितना मैक्सिमम कन्वर्जेंस हमारी आई कर सकती है, और उसकी वजह से हम नियर की चीज़ें बहुत लंबे समय तक बेटर देख पाते हैं बेस्ड ऑन द patient visual feedback. So basically what is the based on patient visual feedback means यहाँ पे हमें पेशेंट के रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर पेशेंट मूव कर रहा है टारगेट और वो पेशेंट नहीं बताएगा तो हमारा जो मेथड है वो फेल हो जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम पेशेंट के फीडबैक पे ही रिलायबल
समझते हैं या फिर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनपीसी, एनपीसी को मेजर करने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आरएफ रूलर होता है वो 50 सेंटीमीटर लंबी स्केल होती है, जिसमें हमें अलग अलग टारगेट्स दिए होते हैं। 4 तरीके के स्लाइडिंग टारगेट होते हैं। स्लाइडिंग जो टारगेट स्केल होती है उसमें हमें 4 स्लाइड्स होते हैं। पहला स्लाइड होता है आपका नियर विजन चार्ट, दूसरा स्लाइड होता है आपका द रोमन नंबर, एंड थर्ड स्लाइड होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रिंट, एंड द फोर्थ स्लाइड इज डॉट इन अ वर्टिकल लाइन। तो हम एनपीसी को मेजर करने के लिए डॉट इन अ वर्टिकल लाइन टारगेट को स्टैंडर्ड टारगेट मानते हैं और उसी के थ्रू हम एनपीसी मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठाएंगे और जो ऑब्जर्वर है उसकी आई और पेशेंट की आई अलाइंड होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और हमारा जो नोज रेस्ट है वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि स्टेरलाइज होना चाहिए। स्टेरलाइज करने के बाद पेशेंट की नोज पे उसे रेस्ट करना है, और जो नोज रेस्ट है वो आपका एक एंगल बनाता हुआ होना चाहिए, जो कि एंगल होता है हमारा 45 डिग्री का। 45 की डिग्री पे हम उस एंगल पे उस इंस्ट्रूमेंट को, आरएफ रूलर को प्लेस करते हैं, और उसी के साथ हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भी स्लाइडिंग टारगेट आपकी आई की तरफ आ रहा है उस पे आपको फोकस करना है, और जहां पर भी आपको जो टारगेट है वो ब्लर दिखता है वो हमें इंडिकेट करना है या फिर हमें बताना है। उसके बावजूद अगर पेशेंट ब्लर बता रहा है या फिर डबल बता रहा है तो हमें उसे भी मेजर करना है या फिर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो भी आपकी फाइंडिंग्स आती हैं उसको रिकॉर्डिंग को इंटरप्रेट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट का नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कितना है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट मूव स्लोली टुवर्ड्स द नोज, बेसिकली आई, हम आई की तरफ टारगेट को मूव करते जाएंगे, पेशेंट को इंडिकेट करते करते जाएंगे कि जहां पर भी पेशेंट को ब्लर पॉइंट दिखे वो हमें बताएगा। तो पेशेंट अगर रिपोर्ट कर रहा है कि ब्लर पॉइंट अभी मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स उसका ब्रेक पॉइंट वहां पे आ गया है। डबल पॉइंट दिख, डबल विजन जहां पे आएगा वो उसका ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने ब्रेक पॉइंट देखा उसकी रिकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर ली, उसको इंटरप्रेट कर लिया। उसके बाद हम पेशेंट को फिर से इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को टारगेट को ही फिक्स करना है, और टारगेट हमारा पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ मूव होगा, और मूव करते करते हमें पेशेंट को फिर से इंडिकेट करना है जहां पे भी वो डबल विजन उस पेशेंट को जो दिख रहा था वो जब सिंगल होगा उसे फिर से वो हमें बताना है। तो जहां पे भी उसका जो डबल विजन है वो सिंगल विजन में कन्वर्ट होगा, उस फाइंडिंग को भी हम नोट डाउन कर लेंगे, वो हमारा रिकवरी पॉइंट कहलाएगा। रिकवरी पॉइंट और ब्रेक पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं। रिकवरी पॉइंट इज जहां पे पेशेंट डबल से सिंगल विजन को अचीव करता है, ब्रेक पॉइंट दैट इज सिंगल विजन से ब्रेक पॉइंट की तरफ। तो ये दोनों पॉइंट हमें मेजर करने के बाद हम उसको वैल्यूज को देखेंगे कि नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करके उसको बताएंगे कि नॉर्मल एनपीसी है या फिर उस पर्सन का अब कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है। अगर पेशेंट का जो वैल्यू है 5 mm से कम आ रही है, मीन्स टू से 4 mm 3 mm अगर आ रही है, दैट मीन्स उसकी आई में कन्वर्जेंस एक्सेस है, उसकी आई एक्सेस अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए एबल है। बट अगर वहीं पे हमारी जो वैल्यू है 10 mm से कम आ रही है, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर से कम आ रही है, दैट मीन्स इस जो पर्सन है उसकी आई में कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है। तो जो नॉर्मल रेंज है उसके बियॉन्ड अगर आ रही है, दैट मीन्स उसकी आई में कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी इंडिकेट हो जाती है, और इसी फाइंडिंग्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और पेशेंट को बताते हैं। इंटरप्रिटेशन की मैंने बात की अभी, जैसे कि हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6 to 10 सेंटीमीटर होती है। अगर पेशेंट 10 सेंटीमीटर से कम देख पा रहा है, दैट मीन्स अगर उसकी जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर से कम है, 4 सेंटीमीटर से कम है,
तो उसकी आई में कन्वर्जेंस एक्सेस है। अगर वही पेशेंट 10 सेंटीमीटर के बाद देख पा रहा है, मतलब कि 11 सेंटीमीटर पे उसका ब्रेक पॉइंट मिल रहा है या फिर 12 सेंटीमीटर पे उसका ब्रेक पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स उसकी आई में क्या है, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है। Receded NPC indicate the convergence insufficiency. Blur point give the accommodative amplitude and break and recovery values record करते हैं हम। अब हम आते हैं नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन पे। तो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन भी सेम ही है, लेकिन इसमें हमारी आई में कन्वर्जेंस के जगह पर एकोमोडेशन का यूज होता है, जहां पे हमारी आई क्लोजेस्ट पॉइंट को देख पाती है, फोकस कर पाती है क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन किसकी वजह से होता है, हमारी आई के अंदर जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो हमारी आई के अंदर एकोमोडेशन को परफॉर्म करती हैं। तो इससे हमें बेसिकली किस चीज का फंक्शन पता चल रहा है, हमारी सीलियरी मसल्स का फंक्शन चल रहा है, फंक्शन पता चलता है कि हमारी आई के अंदर जो सीलियरी मसल्स हैं कितनी ज्यादा कैपेबल हैं, एकोमोडेट करने के लिए फुलफिल हैं या फिर नहीं है। अगर नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन हमारा एबनॉर्मल आता है, दैट मीन्स हमारी आई की एबिलिटी जो है वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, और उसकी वजह से पेशेंट को नियर विजन में प्रॉब्लम आएगी, उसको जो रीडिंग करने में है वो उसको परेशानी होगी। अब रीडिंग करने में जब प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी होगी, तो उसकी आई में एस्थनोपिक सिम्टम्स डेवलप होंगे, जस्ट लाइक हेडेक, आई एक, और ब्लरिंग होगी, समटाइम्स टायर्डनेस होगी। ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट को दिखेंगे नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन अगर उसका रिसीड कर जाएगा तो। What is amplitude of accommodation? Amplitude is the range between the near point and the far point. Means to say उसका near point और far point जो वो clearly देख पा रहा है, उसकी आई का जो distance है, जो difference है उसकी power में, उसको हम बोलते हैं amplitude of accommodation। तो ये भी हमें पता करना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम NPC और NPA को मेजर करते हैं। What is the clinical significance of amplitude of accommodation? It detects the accommodative insufficiency, means to say हमारी आई के अंदर अगर हमारा नियर पॉइंट और हमारा जो फार पॉइंट है उसकी जो वैल्यूज हैं उसमें अगर चेंजेस हैं, वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा हमारी accommodative insufficiency को। It is important for prescribe the reading glasses, क्योंकि हमारा जब तक हमें एकोमोडेटिव एफर्ट और एकोमोडेटिव एबिलिटी नहीं पता होगी तब तक हम रीडिंग ग्लासेस करेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन पता होना चाहिए, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन पता होना चाहिए, जो कि हमारी यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन है वो भी डिक्लाइन होता जाता है। एट द एज ऑफ 10 ईयर्स हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन होता है वो 7 mm होता है। ऐसे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिक्लाइन होता है और चेंज होता जाता है। डायप्ट्रिक वैल्यूज में इसको हम मेजर करते हैं। कंपैरिजन अगर हम करें नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन से और नियर एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन से, तो बेसिकली नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस एबिलिटी है, मतलब कि हमारी आई की ये एबिलिटी जो कि हम नियर पॉइंट को क्लियरली देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस। एनपीए इज द एकोमोडेशन लिमिट, जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारी आई की कितनी एबिलिटी है, एकोमोडेट करने के बाद हम कितना नियर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे हैं। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन is the strength of accommodation, means to say far point और distance far point and near point के बीच में जो भी distance है वो हम clearly देख पा रहे हैं, that is the strength of accommodation, amplitude of accommodation। अगर हम बात करें एडवांटेज की तो इट इज़ अ सिंपल एंड क्विक मेथड जो कि हम बहुत आसानी से किसी भी पर्सन में कर सकते हैं, जिसमें हमें पेशेंट की ज़रूरत है और आरएफ रूलर की ज़रूरत है, एडजस्टेबल चेयर की ज़रूरत है और कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं
जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, और बहुत आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को। पोर्टेबल एंड इजी टू यूज, बहुत ही लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। नो कॉम्प्लेक्स सेटअप इज रिक्वायर्ड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल प्री रिक्विसाइट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बहुत ईजिली एनपीसी और एनपीए को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजफुल इन रूटीन आई एग्जामिनेशन, आजकल की जनरेशन में या फिर नॉर्मली हमारी आई इतनी टायर्ड हो जाती है, हमारी आई का रूटीन एग्जामिनेशन हमें कराना जरूरी होता है। नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, एस्थेनोपिक सिम्टम्स, जिसको हम यूजुअली मिसडायग्नोज कर लेते हैं। सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली बताया कि हमारे ऑब्जर्वर जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं पेशेंट को, और जब तक हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं देगा कि उस पर्सन को, पेशेंट को ब्लर पॉइंट दिख रहा है, ब्रेक पॉइंट दिख रहा है, रिकवरी पॉइंट दिख रहा है, तभी हम अपने रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी फाइंडिंग आती है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट का फीडबैक कैसा है। पेशेंट कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा आपके सेटअप में, तो आपके एंगल में अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो ये फाइंडिंग्स आपको फॉल्स भी मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, या फिर फाइंडिंग आपकी गलत हो सकती है। लेस प्रिसाइज देन ऑटोमेटेड डिवाइस, ऑब्वियसली ऑटोमेटेड डिवाइस आपको बेटर फाइंडिंग्स देते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें आरएफ रूलर की, तो ये मैनुअल मेथड है, थोड़ा सा लेस प्रिसाइज होता है, बट it is a handy method. Cannot measure the distance phoria. What is phoria here? Phoria is the latent hypermetropia, sorry, latent heterotropia या फिर heterophoria, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी आई के अंदर स्क्विंट है जो कि छुपा हुआ है, दैट फोरिया मीन्स लेटेंट। और स्क्विंट जो है इससे हम नहीं मेजर कर सकते, मतलब कि अगर किसी की आई में हेट्रोफोरिया प्रेजेंट है तो उसकी आई में अगर कन्वर्जेंस और हम एनपीए मेजर करेंगे, एनपीसी मेजर करेंगे, तो वो हो सकता है कि फॉल्स हो। तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि उस पर्सन की आई में, पेशेंट की आई में फोरिया है या फिर नहीं है, वो हमें पहले डायग्नोस करना होगा। मीन्स टू से हेट्रोफोरिया हमें फाइंड आउट करने के बाद हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। What is the clinical importance of this instrument? It helps to diagnose the convergence insufficiency, as we already discuss about it, कि हमारी convergence insufficiency को find out करने के लिए या फिर NPA, NPC को find out करने के लिए हम इस procedure को follow करते हैं, इस instrument को use करते हैं। Used in binocular vision assessment, बायनोकुलर विजन असेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, असेस करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। प्रिस्क्राइबिंग द विजन थेरेपी, ये सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट है एक प्रोसीजर ही नहीं है, इससे हम एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कराते हैं, मीन्स टू से थेरेपी भी कंडक्ट कराते हैं। मीन्स जिस पर्सन की आई में अगर फाइंड आउट हो जाता है कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, तो उस पर्सन की आई में हम एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। जो टारगेट होता है वो मैक्सिमली पेशेंट की आई के क्लोज लाना होता है और फोकस करा के देखने की कोशिश करानी होती है। तो ये एक तरीके की थेरेपी है जो कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस, सो बेसिकली ऑप्टोमेट्री के लिए ये एक बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस में, जस्ट लाइक एनपीसी एंड एनपीए। थैंक यू एंड आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल @vcsk.edu.